مین ہول یا موت کے کنویں ڈھکن چوروں سے شہری پریشان ہیں۔ مین شاہراہوں سے ڈھکن غائب ہو گئے، حادثات معمول بن گئے۔ محکموں کی غفلت، بچے اور خواتین حادثات کا شکار ہونے لگے۔ فیصل آباد میں 2 ماہ میں واسا کے 150 اور SNGPL کے 47,000 ڈھکن چوری ہوئے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں مین ہول یا موت کے کنویں ڈھکن چوروں سے شہری پریشان۔ مین شاہراہوں سے ڈھکن غائب، حادثات معمول بن گئے۔ محکموں کی غفلت، بچے اور خواتین حادثات کا شکار ہونے لگیں۔ فیصل آباد میں 2 ماہ میں واسا کے 150 اور SNGPL کے 47 سے زائد ڈھکن چوری ہوئے۔ بات کرتے ہیں اسی حوالے سے وقاص بیگ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی وقاص، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، فیصل آباد شہر کا سب سے بڑا مسئلہ کھلے مین ہول بن گیا، لیکن مین ہول کھلا ہونے کے ساتھ ہی سب کے ذہن میں واسا کا نام آتا ہے، جبکہ صورتحال اس کے برعکس ہے۔ واسا کے مین ہول جو ہیں وہ بھی انکور دکھائی دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ PTCL اور SNGPL کے ڈھکن جو ہیں وہ بھی غائب دکھائی دیتے ہیں۔ خاص طور پہ اگر واسا کی بات کی جائے تو رکشہ چور گینگ جو ہے وہ متحرک ہے گزشتہ 2 ماہ سے، جس کے خلاف مقدمات بھی درج کروائے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ CCTV فوٹیج جو ہیں وہ بھی پولیس کو مہیا کی گئی۔ تاہم فیصل آباد میں گزشتہ 2 ماہ کے دوران 150 سے زائد واسا کے مین ہول کور جو ہیں وہ چوری ہوئے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ PTCL اور SNGPL کے مین ہول کور بھی چوری ہوئے۔ MD واسا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک اہم چیز ہے کہ کسی روڈ پہ اگر مین ہول کور نہ ہو تو حادثہ ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے واسا مقدمات درج کروا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک ہی اس کو کنٹرول کیا جا سکے گا اور کیا طریقہ کار ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے آج بڑا اہم ایشو اٹھایا ہے اور اس لیے آپ کا شکر گزار ہوں۔ پہلی بات تو آپ نے خود بتا دی کہ اس میں بہت سارے فیصل آباد میں مین ہول جو خالی پڑے ہیں وہ ایسے ہیں جو واسا کے نہیں ہیں لیکن نام واسا کا جاتا ہے۔ واسا اس وقت جتنی سیوریج لائن ہے سسٹم ڈلا ہوا تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب مین ہول کورز ہیں جس کو ڈیل کر رہا ہے۔ واسا کے لیے ہر وقت یہ پاسبل نہیں ہے کہ ویجیلنس رکھ سکے ان پہ، کہ دور دراز کے علاقوں میں ہیں، دہری سڑکوں پہ نہیں ہوتے، رات کو لوگ وہ وہاں پہ چوری کر لیتے ہیں۔ رپورٹڈلی آج کے دن میں میرے پاس جو رپورٹ ہے تقریباً 100 کے قریب ایسے ہیں جو ابھی بھی مین ہول کورز آج کی تاریخ میں لگنے والے، اور ہم ڈے ٹو ڈے بیس پہ وہ لگاتے بھی ہیں۔ آپ کو بھی پتہ ہے ڈیلی بگتے ہیں۔ اس پہ ہم نے رسپانس ٹائم صرف 6 گھنٹے رکھا، جب بھی رپورٹ آتی ہے ہم 6 گھنٹے میں اس کو لگا دیتے ہیں، ریپلیس کر دیتے ہیں، یا جو بھی ٹوٹا ہوا تو ریپلیس کر دیتے ہیں، نہیں تو نیا لگا دیتے ہیں، جو بھی صورتحال ہو ریپیئر کر دیتے ہیں۔ اب جہاں تک چوری کا تعلق ہے، اب اس کو کنٹرول کرنا ہم نے جو اپنے ایفرٹ ہیں وہ کر رہے ہیں کہ ہم نے پولیس کو اطلاع دی ہے، جتنی CCTV فوٹیجز ہمیں اویلیبل ہوئیں شہر کے سسٹم سے یا کہ فیکٹریاں نزدیک کسی گھر والے نے لگایا ہوا تھا کیمرہ جس کی ملی، ہم نے ساری وہ پولیس کو بھی دی ہیں، لیکن ابھی تک کوئی چور پکڑا نہیں گیا اس پہ۔ اس کے لیے میں ہائر اتھارٹی سے دوبارہ ریکویسٹ کروں گا، دوبارہ بھی میں ملوں گا بھی CPO صاحب سے کہ ہمیں اس پہ فیور دیں، کوئی سختی کریں، کیونکہ ہمارے لیے ایک دم ویجیلنس رکھنا پورے شہر میں پاسبل ہی نہیں ہے۔ جو مرضی کرنے 1.25 لاکھ ڈھکن کو ہم ایک بندہ تو ان کے اوپر نہیں لگا سکتے، ہر مین ہول کے اوپر ایک یا ایک سڑک پہ ایک بندہ کھڑا ہو جو دیکھتا رہے کہ ہے۔ بس ہماری ٹرائی یہی ہے کہ جو اٹھ بھی جائے، ہماری سروسز کا محکمہ ہے کہ ہم فوری طور پر ریپلیس کر دیں۔ ہم واسا کا ٹول فری نمبر ہے، اس پہ 6 گھنٹے ہم نے رسپانس ٹائم دیا ہوا ہے مین ہول کورز کا۔ ہم چاہتے ہیں، تمام عوام سے میری درخواست ہے کہ اگر کسی کو کوئی ٹوٹا ہوا ڈھکن نظر آتا ہے تو وہاں پہ فوری اطلاع دے، ہم فوری ریپلیس کروا دیں گے۔ اچھا بالکل، واسا حکام کی جانب سے مین ہول کو کور کیے جانے کا سلسلہ جاری ہے، 6 گھنٹے رسپانس ٹائم شاہراہوں سے ڈھکن غائب ہیں، حادثات معمول بن گئے ہیں۔ بہت شکریہ وقاص اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد میں کھلے مین ہول یا موت کے کنویں گورنمنٹ جنرل ہسپتال روڈ سمن آباد اور نواں بانوالا روڈ پر کھلے مین ہول آئے روز پریشانی کا سبب بننے لگے۔ متعلقہ محکمے کی غفلت کے باعث لوگ حادثات کا شکار ہونے لگے ہیں۔ محمد علی نارو وہاں موجود ہیں، ہمیں بتائیں گے، بتائیے گا علی۔ آج بالکل، ویسے تو فیصل آباد پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے، لیکن مسائل کسی دیہاتوں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اس وقت موجود ہوں میں جنرل ہسپتال، گورنمنٹ جنرل ہسپتال سمن آباد کے روڈ پر، جہاں پر عرصہ دراز سے مین ہول سے ڈھکن غائب ہیں۔ یہی صورتحال اس سے بالکل ساتھ ملحقہ نوابہ والے روڈ پہ ہے، جس کے مکمل طور پر 5 سے 6 جو مین ہول ہیں وہاں کے ڈھکن غائب ہیں، جس کی وجہ سے آئے روز حادثات ہوتے ہیں۔ اور یہ شہر کی مصروف ترین اہم شاہراہوں میں سے 2 شاہراہیں ہیں۔ نوابہ والے روڈ کی بات کی جائے تو اس پر رحیم گارڈن واقع ہے، نثار کلونی واقع ہے، مظفر کلونی ہے، ساتھ میں عیدگاہ روڈ ہے، مین علاقے ہیں، لیکن جو مین ہول ہیں ان پر ڈھکن نہیں رکھے جا سکے، جس کی وجہ سے علاقہ مکین پریشان ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات بھی کر لیتے ہیں۔
जनाब बताइए कब से ये सूरत हाल है और क्या क्या हादसा पेश आते हैं? ये दरार अरसे से ऐसे ही है। रात 9:30 बजे मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, जुलूस से आ रहे थे, एक बाइक पे बच्चा गिर गया और उसके बच्चे के साथ वो गिर गई, बीवी, उसके चोट लगी। इस तरह मेन होल की वजह से अगर बच्चा गिर जाता तो बहुत ज़्यादा नुकसान होना था, बच्चा भी नहीं मिलना था। इस इलाके के अंदर ढक्कन जो है वो है ही नहीं, बहुत परेशान आवाम। ये भाई भी बताएंगे, इनका भी यही मसला है। जनाब आप बताइएगा, यहाँ के रिहायशी हैं आप, कब से ये ढक्कन गायब है? ਢੱਕਣ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਗਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪੱਕੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਗਟਰ ਲੁੱਕ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਆ। ਢੱਕਣ ਦੇ ਕੋਈ ਉੱਬਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਦੁਨੀਆ इतना रोड़ों ਦੇ ਤਰੀ ਪਾਣੀ। बिल्कुल बहुत ज्यादा मसाइल हैं। जनाब आप बताइएगा क्या हालात हैं? बल्कि वासा जिन्होंने काम करना है उनके अपने चलाक तरह अंधेरा है, वासा के ऑफिस के बाहर जो है वो ढक्कन गायब है। किन मसाइल का सामना है आपको? काफ़ी मसाइल हैं। ये जनरल हॉस्पिटल है, इधर के देख लें, ये मेन हॉल काफ़ी नहीं है इधर के ना, और ये जो नवाबा वाला रोड है उधर तो बिल्कुल भी नहीं है। आपने देखा होगा काफ़ी मेन हॉल के ढक्कन नहीं है उधर ना। तो आप भी यहाँ के रिहायशी हैं, बताइएगा जरा, मैन हॉल बंद होने चाहिए, मसरूफ तरीन शाहराएं हैं, गुजर बसर है, बिल्कुल सामने अस्पताल है, क्या कहेंगे? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਵੱਡੇ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖਣ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਢੱਕਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਆਣ ਕੇ ਡਿੱਗਦੇ, ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਣ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਵਾਬਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰੋਡ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਆ, ਕਦੀ ਬੱਚੇ ਆਣ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਕਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਡਿੱਗਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਲ ਪਾ ਕੇ ਆਈਦਾ ਵਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ, ਗਟਰ ਤੇ ਢੱਕਣ ਲਾਉਣ ਤੇ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣ। बिल्कुल शहरी परेशान है और वासा का अपना हाल ये है, बिल्कुल चौकी मोड़ पर वासा का बिल्कुल साथ ऑफिस है और उसके बाहर जो मैन होल है उसका भी ढक्कन नहीं है, चिराग तले अंधेरा है। दूसरे मसाइल क्या हल करेंगे? शहरी परेशान है, आए रोज हादसात होते हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि जिसकी वजह से इलाका मकीन भी परेशान दिखाई देते हैं और वासा से यही दरखास्त करते नजर आते हैं कि फिल्फ और जो ढक्कन है वो लगाया जाए, कवर किया जाए। जी महकमे की गफलत के बायस लोग हादसात का शिकार होने लगे हैं। अली हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि फैसलाबाद जिला के 168 सेहत मराकज में स्कूल हेल्थ सुपरवाइजर न्यूट्रिशनिस्ट की सीटें खाली हैं। महकमा सेहत इंतजामिया की महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ को भेजी गई सिफारिशात भी काम न आ सकी। इसी हालत से बात करेंगे आज़ादार हुसैन से। आज़ादार बताइएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद ज़िला जो कि पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है और यहाँ पे 168 बुनियादी मरकज़ सेहत देही बादी के मकीनों को इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम कर रहे हैं और यहाँ पे स्कूल सुपरवाइज़र न्यूट्रिशन की जो सीटें हैं वो खाली पड़ी हैं। तकरीबन 168 बुनियादी मरकज़ सेहत में 168 ही स्कूल सुपरवाइज़र न्यूट्रिशन की सीटें जो है वो खाली हैं, जिसके सबब महकमा सेहत इंतजामिया को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम डॉक्टर खादम हुसैन मिलता है। डॉक्टर खादम बताएं किस किस्म की मुश्किलात का सामना? जी हाँ, जैसे आपने भी फरमाया कि फैसलाबाद पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है, नो डाउट दूसरा बड़ा शहर है, मगर मैं तो बोलता हूँ पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट वो है जहाँ पर सबसे ज़्यादा BHUs हैं। पूरे पाकिस्तान में इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट कोई नहीं है जहाँ पर इतने ज़्यादा BHUs जो हैं वैकेंट है और इतनी यूसीज तकरीबन 168 के करीब स्कूल हेल्थ न्यूट्रिशनल सुपरवाइजर्स की सीट अरसा दराज से वो वैकेंट है। दूसरे डिस्ट्रिक्ट में वो स्कूल हेल्थ न्यूट्रिशनल सुपरवाइजर्स वो काम कर रहे हैं, वो फोकल पर्सन हैं हमारे, उनकी जो सर्विसेज दे रहे हैं हम स्कूल्स की और BHU लेवल पर हमारी जो आजकल EMR चल रहा है उनके फोकल पर्सन हैं, उनको वो मेंटेन कर रहे हैं। हेल्थ की कैंप्स वगैरह चल रही हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन वगैरह करनी पड़ती है और वही सारा काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से उनके जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी रैंकिंग अप जारी है। हमारी बदकिस्मती है कि आज तक हमारे पास एक भी स्कूल हेल्थ न्यूट्रिशनल सुपरवाइज़र वो नहीं भर्ती किया गया और फ्रीक्वेंट रिमाइंडर्स और फ्रीक्वेंट हमने उनको रिक्वेस्ट भेजी है कि ये सीटें जल्द से जल्द आप फिल करें कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग है वो अच्छी हो। तो कोई उम्मीद है कि वक्त आने वाले वक्त में इसके ऊपर कोई अमल दरामद? जी हाँ, उनको पिछले वक्त दरखास्तें वगैरह भी ली गई, दरख्वास्तें भी ले ली गई थी। अब ऐसे है कि ये जब इलेक्शन का ये शेड्यूल ये जो चल रहा है सिस्टम, इलेक्शन के बाद उन्होंने बोला कि हम दोबारा एडवर्टाइजमेंट देंगे और स्कूल हेल्थ न्यूट्रिशनल सुपरवाइजर की जितनी भी सीटें हैं उनको हम फिल करेंगे। बिल्कुल, अगर इलेक्शन होते हैं तो आज़ादार हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबर दें आपको झंग से। झंग जनरल बस स्टैंड की तामीर का मंसूबा आगाज से पहले ही मसाइल का शिकार। नई जगह की फराहमी और महदूद फंड्स तरक्याती मंसूबे के आड़े आने लगे। म्यूनसिपल कमेटी पास सिर्फ चंद करोड़ रुपए की बचत, जबकि मंसूबे के लिए लगभग 150 करोड़ रुपए की जरूरत। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ झंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, झंग में नई जगह पर नए लारी अड्डे की तामीर के राह में कई रुकावटें जो हैं वो हायल होने लगी हैं। वर्ल्ड बैंक के ताउन से ये मंसूबा जो था वो शुरू किया गया
और इसकी जो पहले से मौजूद जगह है अंदरून शहर झंग सिटी के करीब, वहाँ पर इस लारी अड्डे को जो था वो तामीर किया जाना था। इसकी जो PC1 इसका जो तैयार किया गया उसके मुताबिक लारी अड्डे के लिए जो थी वो 1 अरब रुपए रकम जो थी वो दरकार थी, जबकि जो मुख्तलिफ मंसूबों से बचत आ रही थी वर्ल्ड बैंक के उसमें लगभग 70 करोड़ रुपए थी। लेकिन इसके बाद फैसला किया गया कि लारी अड्डे को शहर से बाहर नई जगह पे जो है वो मुंतकिल किया जाएगा, जिसके बाद इस मंसूबे का नए सिरे से जो इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई गई, जर्स कंपनी ने इसका मुकम्मल सर्वे भी किया, जिसके बाद इस बात का अंदाज़ा लगाया गया कि नई जगह पर जनरल बस स्टैंड की तामीर के लिए जो है वो 1 अरब 25 करोड़ रुपए की रकम जो है वो दरकार होगी। जिसके बाद जिस जगह पर लारी अड्डा तामीर होना था गोजरा रोड के ऊपर, उस जगह की भी एक रकम का अंदाज़ा लगाया गया मालियत का, वो भी 25 करोड़ रुपए से ज़ायद बताई गई। अब ये 1.5 अरब रुपए का मंसूबा है, जबकि जो वर्ल्ड बैंक के पास मुख्तलिफ मंसूबों में बचत है या सेविंग्स है वो खासी कम है, जिस वजह से महसूस ये हो रहा है कि ये मंसूबा जो है वो अब तामीर इसकी मंसूबा बंदी से पहले ही जो है वो खटाई में पड़ेगा। इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, डिप्टी कमिश्नर झंग की जानिब से जो हैं वो कोशिशें की जा रही हैं कि इस मंसूबे के लिए वर्ल्ड बैंक या दीगर जगहों से रकम जो है वो ली जा सके, या हुकूमत पंजाब जो है वो इस मंसूबे को जो है वो ADP में डाल दे, जिसके बाद झंग के बासियों को जो है वो बेहतर ट्रांसपोर्ट की सर्विस जो है वो मिल सके। लेकिन ताहाल अभी इसका फैसला जो है वो नहीं हो सका, जिसके बाद अंदेशा है कि लारी अड्डे के लिए लगभग 1.5 करोड़ रुपए की जरूरत है। बहुत शुक्रिया रमजान अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद के गवर्नमेंट जनरल अस्पताल 224 के लिए 10 करोड़ जारी, THQ झुमरा के तामीराती कामों के लिए 10 लाख रुपए जारी कर दिए गए। RHC कुड़ियावाला के अपग्रेडेशन के लिए भी 10 लाख जारी। DHQ झंग में गुलाम नबी ब्लॉक के लिए 7 करोड़ 88 लाख रुपए जारी किए गए। महकमा खजाना ने रवा माह के तरक्याती कामों के लिए फंड्स जारी किए हैं। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद के गवर्नमेंट जनरल अस्पताल 224 के लिए 10 करोड़ जारी, THQ चक झुमरा के तामीराती कामों के लिए 10 लाख जारी कर दिए गए। RHC खुड़ियावाला की अपग्रेडेशन के लिए भी 10 लाख जारी। DHQ झंग में गुलाम नबी ब्लॉक के लिए 7 करोड़ 88 लाख जारी किए गए। बात करेंगे इसी हवाले से इमरान असलम से। जी इमरान बताइएगा। जी बिल्कुल, LDB स्कीम 2023 और 24 के लिए फैसलाबाद में मुख्तलिफ सेहत सेक्टर की स्कीमों के लिए फंड जारी किए गए हैं। फैसलाबाद नुसरत फ़तेह अली खां हॉस्पिटल्स के तामीराती कामों के लिए 10 करोड़ के फंड जारी किए गए हैं, जबकि RHC खुड़ियावाला और THQ झुमरा के लिए 10-10 लाख के फंड जारी किए गए हैं। इसी तरह जंग में DHQ जंग में गुलाम नबी ब्लॉक की तामीराती कामों के लिए 7 करोड़ से ज़ायद के फंड जारी किए गए हैं। और फंड्स के हवाले से जो है वो महकमा खजाना पंजाब की जानब से फंड्स अजरा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस को इनके अकाउंट 1 से अकाउंट 5 में जो है वो फंड्स ट्रांसफ़र करने की हदायत जारी कर दी गई हैं। और रवा माह के लिए जो है वो महकमा खजाना पंजाब की जानब से फैसलाबाद में शोबा सेहत के लिए फ़ंड जारी किए गए हैं। फैसलाबाद चक नंबर 224 गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल, जिसका जो नया नाम नुसरत फ़तेह अली खां हॉस्पिटल है, उसका जो ब्लॉक्स हैं उसके तामीराती महकमा खजाना ने रवा माह के तरक्याती कामों के लिए फंड्स जारी कर दिए हैं। इमरान असलम, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद डेंगू मच्छर के वार जारी, गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 4 नए मरीज रिपोर्ट हो गए। रवां साल मुतासरा मरीजों की तादाद 208 हो गई है। फैसलाबाद में डेंगू के हवाले से आपको बता रहे हैं मच्छर के वार जारी, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। रवां साल मुतासरा मरीजों की तादाद 208 हो गई है। 24 घंटों के दौरान 4 नए मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। डेंगू के हवाले से बताएं आपको डेंगू मच्छर के वार जारी हैं। रवां साल मुतासरा मरीजों की तादाद 208 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 4 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। फैसलाबाद से आपको खबर दे रहे हैं फैसलाबाद डेंगू मच्छर के वार जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 4 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। रवां साल मुतासरा मरीजों की तादाद 208 हो गई है। 24 घंटे के दौरान 4 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। रवां साल मुतासरा मरीजों की तादाद 208 हो गई है। आपको बता रहे हैं डेंगू के हवाले से 24 घंटों के दौरान 4 नए मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। रवां साल मुतासरा मरीजों की तादाद 208 हो गई है। फैसलाबाद में डेंगू मच्छर के वार जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4 नए मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। आपको अपडेट करें फैसलाबाद में मच्छर के हवाले से डेंगू मच्छर के वार जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4 नए मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं।
जंग में 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए महकमा तालीम मुतहरिक हो गए हैं। महकमा तालीम की जानिब से सरकारी और निजी तालीमी इदारों को पोलियो मुहिम कामयाब बनाने के हवाले से हिदायत जारी कर दी गई हैं। स्कूल असेंबली में भी पोलियो पिलाया जाएगा और आगाही भी दी जाएगी। पोलियो मुहिम 6 अक्टूबर तक जारी रहेगी। स्कूल्स में पोलियो मुहिम के दौरान खसूसी डेस्क कायम किए जाएंगे। स्कूलों में आने वाले पोलियो टीमों को सहूलियात की फराहमी भी यकीनी बनाई जाएगी। आपको बता रहे हैं, जंग 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए महकमा तालीम मुतहरिक। महकमा तालीम की जानिब से सरकारी और निजी तालीमी इदारों को पोलियो मुहिम कामयाब बनाने के हवाले से हिदायत जारी कर दी। स्कूल असेंबली में भी बच्चों को पोलियो के बारे आगाही फराहम करने की हिदायत। पोलियो मुहिम 6 अक्टूबर तक जारी रहेगी। स्कूलों में पोलियो मुहिम के दौरान खुसूसी डेस्क कायम किए जाएंगे। स्कूलों में आने वाली पोलियो टीमों को सहूलियात की फराहमी भी यकीनी बनाई जाएगी। आपको बताएं, निगरान वफाकी वज़ीर सनत और कॉमर्स का मुल्की बरामदात बढ़ाने बारे तारीखी इक़दाम। गोहर इजाज़ की कोशिशों से गल्फ ममालिक के साथ फ्री ट्रेड मुआहिदा तय पा गया है। मुआहिदे से पाकिस्तानी बरामदात बढ़ाने समेत माशी मुश्किलात कम होंगी। 14 साल बाद GCC का किसी मुल्क से पहला मुआहिदा तय पाया है। आपको बता रहे हैं, निगरान वफाकी वज़ीर सनत और कॉमर्स का मुल्की बरामदात बढ़ाने बारे तारीखी इक़दाम। गोहर एजाज की कोशिशों से गल्फ ममालिक के साथ फ्री ट्रेड मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे से पाकिस्तानी बरामदात बढ़ाने समेत मुआशी मुश्किलात कम होंगी। 14 साल बाद GCC का किसी मुल्क से पहला मुआहिदा तय पाया है। मजीद बात करेंगे इसी हवाले से बिलाल डोगर से। जी बिलाल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान के लिए खुशाइंद और अच्छी खबर है कि 14 साल बाद GCC ममालिक की तरफ से किसी भी मुल्क के साथ फ्री ट्रेड मुआहिदा किया गया है। और ये निगरान वफाकी वज़ीर कॉमर्स और टेक्सटाइल हैं, गोहर एजाज तक ये रियाज में दौरे पे थे। GCC सेक्रेटरी के साथ इनका मुआहिदा तय पाया है, बाकायदा साइन होकर ये हो चुका है कि पाकिस्तान अब जो GCC ममालिक है, जिसके अंदर सऊदी अरब है, दुबई है, ओमान है, मस्कत है, कतर है, इनके साथ अब बिल्कुल फ्री ट्रेड करेगा। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है गुज़िश्ता रोज साइन हुआ है। इससे पाकिस्तान को बरामदात बढ़ाने में फ़ायदा होगा, क्योंकि सऊदी अरब और दुबई जो है वो पाकिस्तान की बड़ी मंडियों में शामिल होती है, जबकि ओमान, कतर और दीगर की बात करें तो वहाँ पाकिस्तानी मीट जो है उसकी इस वक्त डिमांड जो है वो काफ़ी अच्छी जा रही थी, जिस बिना पे पाकिस्तान को अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए मजीद कुछ रायत जो टैक्सेस के अंदर मिलेगी और छूट मिलेगी, जिसका फ़ायदा जो है एक्सपोर्टर्स उठाएंगे। और पाकिस्तानी मसनूआत के हवाले से अगर टेक्सटाइल की बात करें, खास फैसलाबाद के हवाले से, तो पीछे जो कुछ दिन गए अभी सऊदी अरब के अंदर एक एक्सपो भी लगी थी, जिसमें फैसलाबाद के टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स ने शिरकत की थी। तो ये खुशाइन चीज़ है जो कि निगरान वफाकी वज़ीर कॉमर्स और टेक्सटाइल जो है इंडस्ट्रीज हैं, गोहर एजाज उनको क्रेडिट इसका जाता है। जी बहुत शुक्रिया बिलाल अपडेट करने के लिए। लालपुर कॉम्प्लेक्स के बाहर लगी खारदार तारों ट्रैफिक ब्लॉक होने लगी। 15 फुट बाहर तक लगाई जाने वाली खारदार तार से शहरियों को आमदोरफ्त में भी शदीद दुश्वारी का सामना है। तैयब मकबूल से इस हवाले से बात करेंगे, अपडेट कीजिएगा तैयब। लालपुर कॉम्प्लेक्स फैसलाबाद के बाहर कॉम्प्लेक्स के बाहर पार्किंग की जगह को 15 फुट तक पुलिस काम की जानब से बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से ना सिर्फ यहाँ पर पार्किंग के रोज़ाना की बुनियाद पर मसाइल सामने आ रहे हैं, बल्कि रोड ब्लॉक होने की वजह से भी शहरियों को दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। हम इस वक्त लालपुर कॉम्प्लेक्स के बाहर मौजूद हैं और मेरा कैमरा मैन ईमान अली अगर आपको दिखा सके कि ये लालपुर कॉम्प्लेक्स की दीवार है और उसके बाहर तकरीबन 15 से 20 फुट तक जगह ऐसी है जिसको बिल्कुल खाली छोड़कर बंद कर दिया गया है। यहाँ पर पार्किंग की जगह थी, लेकिन जिसको बिला वजह बंद करने की वजह से शहरियों को पार्किंग के मसाइल का सामना भी करना पड़ता है। और यहाँ पर जो बैरियर और तारें लगी हैं उसके साथ खड़े होने वाली गाड़ियाँ रोड ब्लॉक करने का बाइस बनती हैं। प्रेस क्लब रोड है ये और इंतहाई मसरूफ़ तरीन रोड होने की वजह से यहाँ पर अक्सर औकात ट्रैफिक ब्लॉक रहती है, जिसकी वजह पुलिस हुकाम की जानब से लालपुर कॉम्प्लेक्स के बाहर 15 से 20 फुट जगह को बंद कर देना है। इस जगह को बिला वजह बंद किया गया, ना तो यहाँ पर पार्किंग बनाई गई, ना ही किसी और इस्तेमाल में लाया गया। इसको बंद करने की वजह से शहरी सुबह और दोपहर के औकात में जब स्कूल जाने के लिए बच्चों को छोड़ने जाते हैं, दफ्तरी औकात में अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।